why you should watch this episode? Because you should be conscious of the fact that you're living inside a building for a majority part of your day in your life. And it's important to know what kind of building you're in, how it was designed or not, but how safe you are. We have done the Bharat Mandapam, where the G20 happened. We have done the Medanta Hospital. We've done some mega townships in Gurgaon and Noida. गुड़गांव के अंदर काफ़ी बिल्डिंग्स और एमएनसीज आने शुरू हो गए 90s में। और एमएनसीज जो आए तो एमएनसीज के आने के बाद एक बहुत ग्लास के अंदर रेवोल्यूशन आया। भाई साहब एक मिनट ध्यान से सुनिए, इनकी फैमिली 135 साल से मैं मैथ कर रहा था, 135 साल से ग्लास इंडस्ट्री में। ग्लास पता नहीं कब बना था। मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करेगा? मतलब रियल एस्टेट से अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं है। द काइंड ऑफ मनी यू कैन रिटर्न गेट इन रियल एस्टेट, ये तो आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सोच भी नहीं सकते। कितना टाइम लगा आपको अपना ट्रस्ट डेवलप करने में विद योर डैड? दैट्स अ क्वेश्चन व्हाई, बिकॉज़ आई मेंटर अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स किड्स हु आर नाउ एंटरिंग द बिजनेस वेयर द फादर्स आर वेरी डोमिनेटिंग। ये बच्चे को कुछ नहीं आता, ये नहीं करेगा। फैमिली बिजनेस के बड़े इश्यूज हैं। तो एसीपी जनता शायद समझती है एसीपी इज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ऐसा नहीं होता। नाइसली सेड। सो इन आवर टर्मिनोलॉजी वी कॉल इट एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल। स्किन का आपने एक तरीके से आपने एग्जाम्पल पकड़ा और एक फिलॉसफी पकड़ी। तो आज का एपिसोड नंबर 563, बाकी पता नहीं किसने देखे हैं, बट द पर्सनल केयर मार्केट, स्किन केयर मार्केट इज वर्थ बिलियंस एंड maybe trillions of dollars. Everybody does take care of their skin. What's the connection between this episode and taking care of your skin or taking care of your eyes? Wear these sunglasses and everybody has all the best brands. We're connecting what we do for our skin, because what do we want? We want to be happy, we want to be healthy, and we want to be safe. 18 घंटे, I don't know, maybe it depends, but we spend inside a building, office, home, school, hotel, house. So how important is the outer skin of the building is the subject why we are here. We're talking about facade, we're talking about building, we're talking about how important it is for making sure that your outer skin of the building keeps you safe, keeps you obviously then healthy, and also keeps you protected from sun. You need sunlight, you don't need heat. It keeps you safe from UV and so many other factors coming up, pollution, for what. So today's episode, it's called the effective use of facades or outer skin of the building and connecting it to your body. Because as much as it's important to take care of your body, your skin, it's also important to take care of your building. And buildings are supposed to last forever, let's say 100 years. So if it's not durable, it's not built properly, it doesn't have the right design, it will not perform. So like today, everything is talking about how long will you live, kitne saal jiyenge, kitne wo supplements khayenge. Why are you doing all of that? Is because at the early age, you don't decide to do all of these things. And then you decide to do it. Maybe it's early or it's too late. But here, technology being high-tech, advanced, things have moved a lot in the building industry. So with that to set as a frame, we're talking about facades and connecting it to skin. So why you should watch this episode? Because you should be conscious of the fact that you're living inside a building for a majority part of your day in your life. And it's important to know what kind of building you're in, how it was designed or not, but how safe you are, which will also be able to determine how healthy you will remain inside the building. The air quality, I'm not trying to fox you with so many clues, but having said that as a frame, we have today some people who have been in this industry for decades. Having said that, we have a renowned architect who has more experience than all of us in architectural space for more than 30 years, I would presume. We have an institutional person in the glass industry, 4th generation, and his son, the 5th generation, which is like too many generations of glass. We have a manufacturer of facade and cladding materials who has been doing this for a couple of decades. We'll talk about how important it is for all of these elements. We're not trying to give you faltu ka gyan. We're trying to give you authentic gyan from the people who have been there, done that. So having said that as a frame, let me start this conversation. First of all, thank you all. Thank you. Okay, WFM presents podcast for facades powered by Alstone. And let me start with Nitin. And my question to all of you, we go one by one, is Nitin, who you are, why did you choose architecture, and how is it connected to our daily life? So over to you, Nitin. Yeah, thank you, Amit. So very nice introduction, I must say. So I am Nitin Gupta. I am an architect.
somehow, right from my school time, when my friends were preparing for IIT and medicine, I don't know why it came to me. I think fundamentally because my Tauji and my father were architects. So that is what triggered, I would say. But then when I joined the college and I just got so excited by the whole world of architecture, is when I really started getting engrossed into it. I think the day I came into the actual professional life, it has been a accelerating journey. It is, I think every day has been very fulfilling. Profession, God has been very kind, I think, to give me a lot in terms of the professional satisfaction. Today, or after more than 30 years in the field, I would say I have done all kinds of buildings, large scale projects, small houses. A little bit, yeah. Yeah, sure. So ARCOP, today I say You're one of the founding members of ARC. not really. The founding members were two, Mr. Ramesh Khosla and Mr. Dev Buha. So they were the ones who founded it. But then I joined ARCOP in 95. So it's almost 30 years now. So I have contributed my bit, I would say. ARCOP, Google it, the top architectural firm, probably one of the top in the world. Right. So just to name a few, we have done the Bharat Mandapam, where the G20 happened. We have done the Medanta Hospital. We've done some mega townships in Gurgaon and Noida. So God has been very kind, I would say, that we have got great opportunities in terms of the building design. Bharat Mandapam has been the crown ARCOP, Favorite, yeah. favorite, I would say, his brainchild. So I have also been lucky to have been involved in another of pet project when he was the Chief Minister of Gujarat. So he envisioned a museum for Gandhiji. That I want was to ask you this question while you're saying the thing. He actually got personally involved in the thinking process of the building. oh yes, absolutely. He was approving each and every design. The team was So we saw it. he was at his level. He doesn't need to go into detail, and he is able to look beyond that. But he was approving it. He was approving the concept. I would not say that Wow. was visiting site, It was hard. regularly. He doesn't have time. He doesn't need to. But it can easily be said that it is his baby, I would say. And as a team, I think overall, even to create a team which could deliver the project and to that world-class standard, that we were so proudly able to host G20 in that, with all the 20 nations we had pride for our there. country, right? Absolutely, it was a pride for our country. So, then as I mentioned, the project in Gujarat, that also is so proud. Project called Dandikuti. This name has been given by Dandikuti. ताकि बोले तो खाती जी Dandikuti. And the whole concept was that he wanted to make a museum for Gandhiji, but more not in terms of put memorabilia or put some kind of relics there, but create a digital museum. So that was the first of its kind in the world. All the latest cutting edge digital technologies were used to depict Gandhiji. So there was holography used, and we worked as architects and interior designers there, working with the digital technology experts, and very proudly I can say it is one of the most high-tech facility. Now allow me to move on to introduce the other specialists here so that then I can get the frame from the discussion. भरत भाई, आपको भी मैं बहुत ज़्यादा सालों से बुला रहा, चाय पिलाइए. पहाड़गंज से शुरू किया था, तुलेबुटुर निकला है. पब्लिकली बता. I am Farhad Kamil. I am into architectural glass business. Glass जनरेशन. या आई एम दी फोर्थ जनरेशन. हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने ग्लास के अंदर वो लोग आए थे 1890 में. तो जो मेरे परदादा थे हाजी मौला बख्श, उनका फतेहपुरी में दुकान थी. पार्टीशन के बाद फिर मेरे दादा का सदर बाज़ार दुकान हुई. उसके बाद मेरे जो पैटर्नल अंकल्स या थे उनका
फिर फतेहपुरी में हुई। हम लोग जो आए वो पहाड़गंज से आए। उस टाइम पहाड़गंज पे जो है वो एक ग्लास की बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी, और जो आसपास के जितने स्टेट से लोग आते थे वो पहाड़गंज पे ग्लास लेने आते थे। और एक बॉम्बे थी जहाँ पे इंपोर्ट होता था ग्लास। उस टाइम पे ग्लास जो था उस टाइम शीट ग्लास बनता था। फ्लोट ग्लास 90s में आया, और 90s में फ्लोट ग्लास आने के बाद फिर यहाँ पे बनना शुरू हुआ। एक शीट ग्लास और फ्लोट ग्लास का अंतर बता पाएंगे? शीट ग्लास जो उस टाइम पर बनता था वो शीट ग्लास में डिस्टॉर्शन हुआ करती थी और ज़्यादा वैरायटी नहीं होती थी। फ्लोट ग्लास में डिस्टॉर्शन फ्री ग्लास था, बड़ी शीट्स में आता था, ऑप्टिमाइजेशन अच्छी थी उसकी, और उसी के साथ जो थी वो आर्किटेक्चरल ग्लास चूँकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर यूज़ होना शुरू हुआ। उस टाइम पे वर्टिकल प्लांट्स होते थे टेम्परिंग के, क्योंकि फ्लोट जो हॉरिजॉन्टल प्लांट्स थे उस टाइम पे नहीं थे। 90s में ही फिर दोबारा से जो है फ्लोट के बाद जो है ये हॉरिजॉन्टल टेम्परिंग प्लांट्स आए। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ये था, जो वर्टिकल प्लांट्स थे, वर्टिकल प्लांट्स में जब उसको करते थे तो उसमें टॉन्ग मार्क्स आते थे और उसके साथ उसमें डिस्टॉर्शन भी आती थी। टॉन्ग मार्क्स बोले तो उसको टॉन्गल से जो है वो मतलब जो ऊपर से जैसे कपड़े सुखाते हैं तो उसका वो आ जाता है, उसको टोंग बोलते हैं। जी, टोंग करते हैं, और उसके टोंग के पर निशान भी आ जाया करते थे उसके ऊपर जो है। और इसमें फिर जब इस हॉरिजॉन्टल आया तो उसमें बेंड का, वेवीनेस का, डिस्टॉर्शन का ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक सॉल्व हुई। और उसी टाइम पे ये था कि गुड़गांव के अंदर काफ़ी बिल्डिंग्स और MNCs आने शुरू हो गए 90s में। और MNCs जो आए तो MNCs के आने के बाद एक बहुत ग्लास के अंदर रिवोल्यूशन आया, क्योंकि जो वहाँ से लोग आए वो अपनी टेक्नोलॉजी, उनके जो PMCs, जो उनके आर्किटेक्ट्स थे, वो सब वहीं से उनको लेकर आए ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। और वो जो एक पीरियड था 90s का, वो आर्किटेक्चरल ग्लास में एक बहुत बड़ा अपने आप में चेंज लेकर आया। और काफ़ी ग्लास उस टाइम पे भी इंपोर्ट हुआ करता था, जैसे हम लोग बेल्जियम से, फ्रांस से, इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया करते थे। लैमिनेटेड DGU और आपका ये टेम्पर्ड ग्लास जो है वो बाहर से टेम्पर्ड या लैमिनेटेड DGU एक्सोर्स लेके आया करते थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उस टाइम पे हमने किए, और मोस्टली गुड़गांव, थोड़ा दिल्ली में भी शुरू हो गए थे। कनॉट प्लेस में आया, राइट। और काफ़ी जगह पे, और फिर उसके बाद नोएडा के अंदर भी। भाई साहब एक मिनट ध्यान से सुनिए, इनकी फैमिली 135 साल से, मैं मैथ कर रहा था, 135 साल से ग्लास इंडस्ट्री में। ग्लास पता नहीं कब बना था, शायद 300 साल पहले, 350 साल पुरानी स्टोरी। ये मतलब इंडिया में ग्लास आने से पहले इनकी फैमिली थी। तो जो ये बोल रहे हैं वो मोटा मोटी सही बोल रहे हैं, तो जस्ट ध्यान कर लीजिएगा। मुझे कभी इसके अंदर ये नहीं हुआ, कोई कंपल्शन नहीं थी, इट वॉज बाई चॉइस। मुझे इसमें बड़ा एक पैशनेट, मतलब उसमें आया पैशन था कि ग्लास के अंदर कुछ नया करना चाहिए। और इसमें मेरी अपनी एक ये रही कि सिर्फ पैसे नहीं बनाने, इसको नॉलेज ट्रांसफ़र करनी। मतलब उसमें ये होना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा ग्लास। आज भी जब मुझे किसी आर्किटेक्ट से, किसी कंसल्टेंट से बात होती है, मैं उनको ये राय देता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि उसके जितनी उसकी खूबियाँ हैं उसके हिसाब से बिल्डिंग में जाएं, क्योंकि आज सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, और सिक्योरिटी, सेफ्टी, एनर्जी सेविंग, इन चीज़ों का बहुत एक मायने रखता है। एक मैं आपको एक बताता हूँ एक किस्सा। जब टेम्पर्ड ग्लास 12 mm का रेलिंग्स में शुरू हुआ तो ग्लास में स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज भी होती है। ग्लास, कई बार ग्लास जो है वो स्पॉन्टेनियस ब्रेकेज हो जाता है, निकल से आप बिना कुछ किए टूट जाता है, जिसको हम सुसाइडल भी कहते हैं, मतलब ग्लास सुसाइड कर लेता है। तो रेलिंग में ग्लास था, और आमतौर पे क्या होता है कि जो रेलिंग होती है या बालकनी होती है वो किचन या आपके बेडरूम्स के बाहर होती है। तो मेड ने अपना छोटे बच्चे को बालकनी में छोड़ दिया और वो क्रॉल कर रहा था, और वो सुसाइडल किया ग्लास जो है, और बस अगर वो मेड टाइमली नहीं देखती तो बच्चा जो है वो उसका मिसहैपनिंग कुछ ना कुछ हो जाती है इसमें। तो उसके बाद लैमिनेटेड ग्लास का हुआ। लैमिनेटेड ग्लास ये है कि उसको बल्कि रिकमेंड करते हैं कि आप हीट स्ट्रेंथन लैमिनेटेड करें। हीट स्ट्रेंथन इसलिए कि जब आप गाड़ी का विंडस्क्रीन देखते हैं तो गाड़ी के विंडस्क्रीन में कभी भी कोई क्रैक आता है तो थोड़ा सा क्रैक आता है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब चाहें उसको बदल सकते हैं। अगर वो टेम्पर्ड लैमिनेटेड होगा तो इट विल शैटर,
और वो एक तरह से आपकी ड्राइविंग में, और कई बार जो एक्सीडेंट होते हैं वो मतलब उसमें आपका क्योंकि कुछ नज़र नहीं आता, उसकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कई बार करी कि ग्लास की एप्लीकेशन और कौन सी ग्लास लगाना चाहिए वहाँ पे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द बिल्डिंग। राइट प्रोडक्ट फॉर द राइट एप्लीकेशन। कई बार ये होता है हम एस्थेटिक्स देखते हैं, हमारे इंडिया में पहले ये होता था कि कई बार एस्थेटिक्स देखे, जैसे द ग्रीन ग्लास, किसी को ग्रीन पसंद था, किसी को ब्लू पसंद था, तो उस हिसाब से वो उसको चॉइस करते थे। मगर हम लोगों ने कोशिश ये करी कि उसको एप्लीकेशन के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस में लाया जाए, और आज काफ़ी हद तक इस पर कामयाबी है। और जितनी भी आज बिल्डिंग्स बन रही हैं, दोज आर एनर्जी सेविंग बिल्डिंग्स, सिक्योरिटी ग्लास है उसके अंदर। मैं आगे अपने 5th जनरेशन पे चलता हूँ, मेरे बच्चे अली पे। अली, ओवर टू यू बडी। Hi, I'm Ali Kamil from Kainat Glass, and thank you for having me over at the show. It's been almost a decade since I've been in the industry. I did interior designing, and I've been, of course, since I'm the 5th generation and glass runs in our DNA, I've been going to the factory ever since I was a kid, and I absolutely love the product. So, you know, the passion runs in the family. So since I did interior designing, after that, when I joined the business, I wanted to do something more on the creative side. And, so after that, after learning the whole process and learning from the industry veterans, I started exploring the product even further. I'll disturb your frame for a second, Ali, here. Okay, your 5th generation, your whole family is in the glass business. How was it to, Bharat bhai ke liye, how was it to integrate you into the business? कितना टाइम लगा आपको अपना ट्रस्ट डेवलप करने में with your dad? That's a question. Why? Because a lot of this, I mentor a lot of friends, kids who are now entering the business. Somewhere the fathers are very dominating. ये बच्चे को कुछ नहीं आता, ये नहीं करेगा. Family business के बड़े issues हैं, but your family business, third, 4th generation. तो आपके लिए कैसा रहा है for your family to let you integrate कि मेरा बेटा काम का है, कुछ कर सकता है? फरद भाई कर सकता है? बोलिए। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, जरूरी है। जिस टाइम ये आए तो मैंने इनसे ये सवाल किया कि अगर तुम्हें ये नहीं करना तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मेरा बिजनेस ज्वाइन करो, आप कुछ और करो, इंटीरियर्स के अंदर बहुत सारा स्कोप है, आप वो करते। मगर इन्होंने जब अपनी ख्वाहिश जाहिर करी तो मैंने इनको, आपने फोर्स नहीं किया? सच बोलो। और उसके बाद ये था कि मैंने इनको फोर्स करने के अलावा ये कहा फ्री हैंड दे दिया। वो फ्री हैंड में ये था कि हमारे अंदर कई चीज़ों की सोच में या बात करने में थोड़ी सी गैप था, तो मुझे लगा कि जब तक मैं इनको फ्री हैंड नहीं दूंगा तो शायद ये ग्रो अच्छा नहीं कर पाएंगे। चाहे जितने भी पैसे फोड़ दिए, फ्री हैंड देना वो करे, बहुत किए, और बल्कि मुझे रातों को बहुत परेशान किया। आज भी मैं कहता हूँ कि अभी भी होता है तो रात को 3 बजे उठेंगे, नॉक करेंगे, मैं जो कुछ बात करनी है बेटा, तो सुबह भी मैं सुबह तक वो नहीं कर पाऊंगा जो अभी बात कर सकता हूँ। मैं उस टाइम आने के बाद मैं फरद भाई आपको बीच में कट करूंगा। माय फादर इज नो लॉन्गर देयर, ही पास्ड अवे ऑलमोस्ट 9 years ago, and my greatest learning was from my father that he never told me what to do and what not to do. मतलब फुल इंडिपेंडेंस थी कि जो करना है कर भाई, बट जस्ट मेक श्योर, बस झूठ मत बोलना। दैट वाज हिज वन, एंड टेल माय किड्स आल्सो द सेम थिंग कि जो करना है करो, बट किसी को झूठ मत बोलो और किसी का ट्रस्ट मत तोड़ो। आप बता दो आप क्या कर रहे हो, अगर बंदे को पसंद है। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू चिल्ड्रन, to trust develop mutual. So how has been your trust building with your dad? I tell you that from the very first day I had all the freedoms, and जब मैंने business join किया, and he said, Ali, look, you do you, and there are no, I give you all the freedom, and he's guided me all along, and I've been very inspired. उनको 3 बजे मत उठा यार, अगले को सोने में। सर अब जब आइडियाज आ रहे हैं मेरे दिमाग पे, so I must भाई अगले की भी जिंदगी है, 3 बजे सोने थे, पर ठीक है, it's okay. So when I started understanding the products even more, the ideas started to pop up in my mind, and I just couldn't hold back. I just wanted to do more, and I wanted to explore the product even further, and I started going around in the exhibitions. I started asking the experts of how I can develop more in glass in terms of creativity. So we developed multiple products, and I've been really inspired by my dad in this journey. I've seen how he's respected in the industry, and those are some big shoes to fill. And it's an absolute, the whole the
life is waiting ahead of me, and I think. But I want to add, Ali, I want to add one thing which I learned with my experience. Ke you can't be your dad. You can't be trying to be. You got to be yourself. Absolutely, this is what I learned. Correct. And I built my own caricature in life based on what I thought was what I want to be. And a lot of kids now, they have this major difficulty, and I see so many of them saying, "Okay, I can't do what my parents have done." Yeah. I just tell them what they have done is your pedestal, is your platform. Correct. अब आप उस प्लेटफॉर्म को लेके उसको आगे बिल्ड कर सकते हो. और आज के एपिसोड में और एनर्जी लाने के लिए सुमित बताएंगे कि उन्होंने अपने फैमिली बिजनेस का मेन इथोस छोड़ के ये मैन्युफैक्चरिंग का प्यार और ये क्लैडिंग के बिजनेस में कैसे आए. सुमित. So Amit, my dad is into real estate business, and I was very clear from my school time that I would be getting only into manufacturing. Why so? Somehow I had that passion and intent that real estate is something which I will not be able to do. I had no interest in real estate. Though तो इनके पेट इनडायरेक्टली जुड़े हुए तो हमें से हैं। इधर से नहीं तो दूसरी तरफ से सही है. yes, so फिर I discussed with my dad and I said, पापा मेरे को real estate नहीं करना. He said, मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करेगा? क्या करेगा? मतलब रियल एस्टेट से अच्छा कोई बिजनेस ही नहीं है. द काइंड ऑफ मनी यू कैन रिटर्न गेट इन रियल एस्टेट, ये तो आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सोच भी नहीं सकते. मैंने कोई बात नहीं पापा, आई जस्ट वांट टू गेट इनटू सम मैन्युफैक्चरिंग ओनली. So one fine day, I still remember after completing my graduation, I was looking for some product where I can see some manufacturing happening. So one uncle gave us very small sample of the cladding product. He said, आजकल बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा लग रही है ACP. समझाएंगे सब जनता के लिए. So ACP जनता शायद समझती है ACP is Assistant Commissioner of Police. ऐसा नहीं होता. Nicely said. So in our terminology, we call it aluminium composite panel. We also call it as a building cladding. So that's something which Amit was just talking about, that it's a skin of the building. And we proudly say that we are the largest manufacturers of cladding material in India. And जब वो जो मैं डिस्कस कर रहा था तो वो सैम्पल लेके आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर दैट प्रोडक्ट. मैंने देखा इंडिया में अभी एक ही मैन्युफैक्चरिंग है एंड इसकी डिमांड बढ़ रही है. देन आई met few other friends and I inquired about the product and I realized कि यार हाँ इसमें जान तो है. So this is how I started getting into manufacturing. दिन याद है हमने ये. Yes, 2004. Yes. What we are trying to position here in this conversation is कि बिल्डिंग स्किन, आपकी स्किन का कनेक्शन क्या है. अगर कोई आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है, बिकॉज सबसे पहला काम अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, होटल हो, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हो, मिक्स लैंड यूज कंस्ट्रक्शन हो, इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट हो, भारत मंडपम हो, IIM हो, ITI हो, IIT हो, उन सब के पीछे एक थॉट प्रोसेस होता है. तो उस थॉट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नितिन, मे बी यू कैन टेक द लीड ऑन दिस कि मटीरियल डिसीजन जो होता है, व्हाई इज इट डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स. राइट. सो अमित, मैं वहीं से शुरू करता हूँ. मंडपम और स्किन, जो स्किन का आपने बिल्कुल करेक्ट, उसका एक तरीके से आपने एग्जाम्पल पकड़ा और एक फ़िलॉसफी पकड़ी. ये मैंने करीबन 20-25 साल पहले एक किताब पढ़ी थी. एक जर्मन आर्किटेक्ट थे, हैंडर वासर. उनका हैंडर वासर, जर्मन आर्किटेक्ट. जी. तो उनका एक बड़ा फनी या किस्सा मैं बताऊं, किताब में खुद ही लिखा हुआ था कि वो आर्किटेक्ट थे, आर्टिस्ट थे और प्रोटेस्टर भी थे, रिवोल्यूशनरी थे अपने टाइम पे. दिस इज बिफोर द वॉर टाइम्स. नहीं, आप 1980s, 1970s, 1980s. ओके. तो उन्होंने इतना एक टाइम पे वो परेशान हो गए कि किस तरीके का आर्किटेक्चर हो रहा है जनरली जर्मनी में. उन्होंने नेकेड एक बाईसाइकिल राइड ली. पहले अनाउंस करा मैं लूँ, जर्मनी अलाउ करता है वो चीज़. और फिर उसके बाद उन्होंने भाषण दिया कि भाई बात समझो, जैसे हमारी स्किन है वैसे ही आप हमारी सिटी में उसी तरीके से हमारे को एनक्लोज करती है, हमारा घर हमें एनक्लोज करता है. राइट. तो उसी सेंसिटिविटी से आपको इसको देखना है. तो आप अगर मेरे को अच्छा चीज़ नहीं बना के दे रहे, या एज आर्किटेक्ट मैं आपको अच्छा नहीं बना के दे रहा, तो मैं कहीं पे कहीं आपको वही लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट दे रहा हूँ.
So that is how he said the whole thing. तो वहीं से एक दिमाग में ये बात मेरे भी बैठ गई कि कहीं ना कहीं जो ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल चीज़ नहीं है. जब हम लोगों ने कॉलेज से आर्किटेक्चर करा था तब शायद किसी ने इतना गूढ़ बात, इतनी डेप्थ वाली बात हमें नहीं बताई थी. तो हम लोग लार्जली उसको एक कॉस्मेटिक फसाड की तरीके से सोचते थे कि एक उसको सुंदर बनाना है, लिपस्टिक लगानी है, कुछ करना है, राइट. बट ये बात सुन के बिल्कुल एक तरीके से इट वाज अ रिवोल्यूशनरी शिफ्ट इन माय माइंड आल्सो. एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग एट, आई स्टार्टेड लुकिंग एट ईच एंड एवरी बिल्डिंग, यू नो, एंड द फसाड in that respect. We finally, you are enclosing the skeleton of the building. So every time you must be designing a building, it must have been a thought in your head. Oh yes, absolutely. Just so that everybody understands, the facade of a building basically means the outer cover of a building. It could be concrete, it could be glass, it could also have some composite panels, yes, aluminium solid walls. ताज महल में कुछ नहीं था भाई साहब. ताज महल तो अभी भी फर्स्ट क्लास आइकॉनिक बिल्डिंग है. That's also a facade of a building. So anything like the facade, like I'm wearing a half sleeve, wearing a full sleeve. In the winters, we wear full clothes, jackets. That's also like a facade. Oh, absolutely. To protect your skin, to protect yourself. The same thing you have to look at a building. आप देखिए, एक कोल्ड क्लाइमेट में लोग लॉन्ग कोट्स पहनते हैं, वुलन्स पहनते हैं, और एक वार्म क्लाइमेट में जैसे कि अपना बरमूडा है. बरमूडास कहाँ से फेमस हुए? वो जो हम शॉर्ट पैंट्स पहनते हैं, क्योंकि उस क्लाइमेट में पहन ही नहीं सकते आप पूरी फुल पैंट. तो आपके जो नेचुरल टायर में चीज़ें आती हैं वो फाइनली आपकी बॉडी और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आती हैं, उसी से इवॉल्व होती हैं. आर्किटेक्चर और फसाड भी ऐसे ही है कि आपको धीरे धीरे करके हम सीखते हैं. आर्किटेक्ट एज अ प्रोफेशनल जल्दी सीख जाता है, बाकी इंडस्ट्री ऑर्गेनिकली सीखती है. बट फाइनली वो है एक फंक्शनल एक्सप्रेशन कि आपको प्रोटेक्ट करना है. जो हम कहते हैं ना शेल्टर, वो एक बेसिक ह्यूमन नीड है. बट ऐसे में जस्ट थिंकिंग आउट लाउड कि अगर आप दूर से एक बिल्डिंग को देखते हो तो आपको देख के पता लग जाता है कि वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, क्या ये स्कूल है, क्या ये हॉस्पिटल है. इसके पीछे आपका ही एज एन आर्किटेक्ट मेजर रोल लाइज एट योर एंड टू गिव इट दैट डिपिक्शन, राइट, पर से. हाँ, तो अमित, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी फंडामेंटल टीचिंग इन योर एजुकेशन ऑल्सो. आपने भी इंटीरियर डिज़ाइन करा है तो यू नो अबाउट डिज़ाइन फंडामेंटली, कि जब डिज़ाइन की एक वोकैबुलरी होती है तो उसमें आप जितना ज़्यादा ट्रुथफुली आप अपनी बिल्डिंग को, आप अपने जिस चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हो उस कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्टेक्स्ट मतलब वो किस सिटी में है, किस कंट्री में है, किस क्लाइमेट में है, उसको जितना एक्सप्रेस करेंगे उतना वो इनहेरेंटली प्योर और सुंदर बनेगा. इंटीग्रेट भी तो हो जाएगा. बिल्कुल. सिटी से अलग नहीं दिखेगा. सिटी से अलग नहीं दिखेगा. दूसरा, कहीं ना कहीं एक कॉग्निटिव जो माइंडसेट होता है उसमें आपको लगना चाहिए कि ये बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है. एक स्टूपिड सा थॉट आ रहा है कि अभी जो लुक एट गुड़गांव, तो गुड़गांव कहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है? सॉरी गुड़गांव वालों, मुझे माफ कर देना, मैं आपके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा, ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूँ. गुड़गांव गांव है वैसे तो फंडामेंटली, राइट? तो व्हाट हैज गुड़गांव बिकम एज एन एग्जांपल ऑफ थॉट? तो मैं इसका एक आपको किस्सा बताऊं. मैं एक और कॉन्टेक्स्ट बोलता हूँ. गुड़गांव में पहली ग्लास का बड़ा शोरूम ये भाई साहब ने खोला था, फरज भाई ने. तो सारा ग्लास मोस्टली इनके यहाँ से गया है. अच्छी बात है. सॉरी नितिन. राइट. तो हम गुड़गांव में हाईवे पे ड्राइव कर रहे थे, तो मेरे लड़के जो उस टाइम पे शायद 3 साल 4 साल के होंगे, तो वो एक, हम सबको पता है, वो उसके सामने से गुजर रहे थे. इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो उन्होंने वो नाम पढ़ के बोला कि क्या इनकी बहुत सारी ग्लास की फैक्ट्रियाँ हैं क्या? ठीक है. तो ये इम्प्रेशन आया, राइट, विच आई वुड से ठीक है, अब उनकी फैक्ट्रियाँ बढ़ गई है. तो उनको मतलब वो एक फीलिंग है विच आई वुड से कि आर्किटेक्चरली शायद सही था या नहीं था, वो डिबेट है. बट कंक्रीट जंगल. हाँ, मतलब अब ग्लास जंगल बन गया या ये आज की डेट में. तो वो भी एक हमारे को आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो रियलिटी भी तो है, सेंसिटिविटी रखनी चाहिए. So I have a question, so lately, since the increasing temperature in the country and the climate conditions, what is your take on all glass buildings? Since we are, from an architectural point of view. Very good question. Maybe you can also break this into standalone vision areas so that it gets a better perspective. बिल्कुल. तो देखिए, ये ना आई वुड से लाइफ लॉन्ग डिबेट रहेगी. Yeah. अब ग्लास वैसे देखें इतना बढ़िया मटेरियल है,
एक आर्किटेक्ट के लिए ना एक ड्रीम मटेरियल है ग्लास और मेटल, मैं दोनों कहूंगा, तभी इतने तो पॉपुलर। आपका सबका धंधा चालू रहे, ऊपर वाला धंधा दृष्टि रहे। तो अब हर आर्किटेक्ट जब सोचता है ना समहाउ बिल्डिंग, ग्लास और मेटल, मतलब मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा इस फोरम में, बट वो इतना जबरदस्त चीज है, ठीक है, कि वो अट्रैक्ट करती है, right? एक तरीके से ना ग्लैमर है उसमें, सेडक्शन है, दैट इज व्हाट द मटेरियल से, मेटल और ग्लास दोनों। तो अब आर्किटेक्ट का बहुत मन करता है यूज करना, तो वो शुरू में हमें मुश्किल पड़ती थी, क्योंकि वो हमारे जो एयर कंडीशनिंग कंसल्टेंट और वो साथ में कि कम करो, राइट, वो हीट आती है उससे बिल्कुल अपना, ठीक है, फिर वो सन साइड पे नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बातें सही हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ग्लास टेक्नोलॉजीज और आपकी इंडस्ट्री ने एक बड़ा अच्छा जो रिवोल्यूशन लाया ना टेक्नोलॉजी में, कि पहले डबल इंसुलेटेड ग्लास, उसके बाद टिंट के बाद उसमें थर्मल परफॉर्मेंस, तो अब तो एवरी ईयर आई थिंक इतने रिवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं। सिमिलरली मेटल इंडस्ट्री में मतलब एक ज़माना ऐसा था सुमित जी कि हम कई बार एल्यूमिनियम रॉ ही लगाते थे या कुछ वो ठोक के, राइट, वो शीट मेटल लगा दिया, ये कर दिया जस्ट मेटल लाने के लिए। तो अब तो एसीपी, हनीकोम, जिंक मेटल, जिंक, यू नो, इतना, और इंडस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से सपोर्ट कर रही है कि आप जो बिल्डिंग का सॉलिड पोर्शन है उस पर आप मेटल यूज़ करिए, कोई मॉडर्न मटेरियल यूज़ करिए, उसके बाद जो उसका विजन वाला पोर्शन है ना, वहाँ पे तो ग्लास बनता ही है यूज करना। मैं थोड़ा पॉज करूंगा, आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट बाय एनी सेंस, बट कभी भी आप किसी बिल्डिंग में बैठते हैं तो जहाँ मेटल आता है वो एरिया वहाँ है जहाँ आपके पैर, आप किसी फ्लोर पे बैठे हैं 4 फुट हाइट तक, वहाँ मेटल आ जाएगा। उसके ऊपर विजन एरिया वो हो गया जो वेर यू कैन सी व्हेन यू आर सिटिंग इनसाइड अ बिल्डिंग, व्हेन यू कैन सी आउटसाइड, बिकॉज नीचे ग्लास लगाने का कोई पर्व नहीं है। फिर ऑल ग्लास विल ऑल्सो बिकम अ लिटिल बिट बोरिंग, नहीं तो इनका धंधा नहीं होगा, सिर्फ उनका होगा। तो देन adding to it, one important point, Amit, which we also need to understand, that if you compare any residential building with a commercial building, so generally you would see glass mostly being used on the commercial buildings. But if you are talking about a residential building, you would see a combination of glass plus other cladding material, which could be aluminium, which could be copper, which could be zinc, which could be a tile, which could be a concrete, or maybe just a paint. So having 100% glass on cladding on residential building is something which you would not see in common in India. in India, but you see that a lot abroad. Abroad, yes. Dubai for sure you see it yes, a lot. तो देखिए अभी कुछ इस तरीके का ना एक्सप्रेशन बन रहा है सुमित जी कि बहुत जो हाई एंड रेसिडेंशियल है वो अब यूज़ कर रहे हैं ग्लास, और वहीं से मैं आता हूँ पॉइंट पे कि रेसिडेंशियल में तो आप फुल ग्लास तो वैसे ही नहीं कर सकते सब जगह, राइट। तो उसमें एक और पॉइंट आता है कि ग्लास में भी 2 तरीके के यूज़ होते हैं, जहाँ से आपको व्यू चाहिए वो विजन पैनल कहते हैं, करेक्ट। और एक जो हमारे फुल ग्लास बिल्डिंग में जो सॉलिड पोर्शन पे भी आप ग्लास लगा सकते हैं उसको स्पैंड्रल पैनल कहते हैं, right. उसके पीछे आपकी इंसुलेशन भी होती है, उसके पीछे आपका सॉलिड एरिया होता है, चाहे वो स्ट्रक्चर है चाहे वो जहाँ आपको प्राइवेसी देनी है। तो ये दो तरीके से भी आप यूज़ कर लेते हैं, और समहाउ ये अब ट्रेंड बन रहा है, मैं देख रहा हूँ, जैसे ट्रम्प टावर बना है अभी गुड़गांव में, तो वो जस्ट टू शो रिचनेस, नहीं, दैट इज मास्टर प्लान हैज बीन डन बाय अस फॉर M3M, बट उसमें फिर जो 2 सिग्नेचर टावर थे वो फिर ट्रम्प क्या ये कहना गलत होगा कि पिछले 10 साल में अगर कितनी बिल्डिंग बनी है उससे 100 गुना तो नहीं बोलूँगा, 50 गुना बिल्डिंग्स और बनेंगी अगले 5 साल में। हाँ 50 गुना बिल्कुल बनेंगे। यस, ग्रोथ स्टोरी काम बहुत है भाई साहब, बट सावधानी से काम करें, बिकॉज उसी में उस बिल्डिंग की लाइफ निकलेगी जिसमें सारे सेफ्टी, सिक्योरिटी, और कोई भी लीज कर रहे हैं आजकल कमर्शियल तो उनको अगर 50 साल तक हाइपोथेटिकली किराया चाहिए, तो अगर वो गुड़गांव में और नोएडा में और बैंगलोर में और बॉम्बे में और हैदराबाद में हर जगह बहुत बिल्डिंग तो खाली हो जाएंगी, बिकॉज वहाँ सिंगल ग्लास लगा हुआ है और वो हीट देता है अंदर, तो जितना एसी का बिल आता है इट इज़ मच मोर देन द रेंट। आप भरत भाई मुझे बताएं ज़रूर, क्योंकि आप 150 साल से इसी बिजनेस में हैं, तो हम तब तो इनमें से हम में से कोई भी नहीं पैदा हुआ था, बट स्टिल 80s से अब तक के एक्सपीरियंस है, आपके क्लाइंट साइड में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? क्लाइंट्स में जो पहले था उसके अंदर देखिए लाइफ वॉज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल लाइफ थी, लोगों को नॉलेज नहीं थी,
सिर्फ एस्थेटिक्स को देखा करते थे। ये नहीं था कि ग्लास अगर लगा रहे हैं तो कौन सा, अभी आपने एक सवाल किया कि कौन सा ग्लास, कौन सी एप्लीकेशन किस जगह होनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, फार्म हाउसेज हैं, रेजिडेंशियल हैं, तो उसमें ग्लास की, तो इसमें ग्लास की सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। जैसे आपने कहा भाई ग्लास का जो है नहीं होता, आज अगर फार्म हाउस है तो आज तो कहते हैं जैसे 3 मीटर बाई 6 मीटर का ग्लास है, और 3 मीटर 6 मीटर का ग्लास इसलिए है कि उसकी अगर लैंडस्केपिंग है तो उसको नज़र आए। आपने पिछले दिनों में देखा होगा, जब मुझे याद है कि जब कभी कोई बीमार हो जाता था तो वो कहते थे कि कहीं इनको हिल स्टेशन पे ले जाएं। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि वो जब ऐसी एज में आ गए जहाँ पे एक डिप्रेशन मोड में है, कहीं है, तो उसको एक अपनी लाइफ में कुछ नज़र आए, नेचुरल लाइट हो। और इवन हॉस्पिटल्स की है, जब आदमी जाता है बंद कमरे में बंद हो जाए, अगर लाइट आती है तो हाई लाइट ट्रांसमिशन, लो यू वैल्यू, तो ये एक सिलेक्शन ज़रूरी है। और उसमें आप क्लियर लो यू पे जाएं। जैसे ग्लास के अंदर भी सिलेक्शन है तो क्या है, इवन साउंड पे, जब आप साउंड है, आपने मेन रोड पर बिल्डिंग तो बना दी मगर साउंड आता है, हॉस्पिटल है, पेशेंट कैसे उसमें रहेगा, तो विच ग्लास यू शुड सेलेक्ट। कई लोगों को होता है कि नहीं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे अभी आपने हमें कहा कि लोग सिंगल ग्लास लगाते हैं, ठीक है, दैट इज़ नॉट कॉस्ट सेविंग। अगेन आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स पे बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आ रहा है। तो कई बार जो है वो सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आर्किटेक्ट्स के लेवल पे, कंसल्टेंट्स के लेवल पे, क्योंकि मेरा कई बार जाना होता है और मेरी इंटरेक्शन होती है विद डेवलपर्स, विद कंसल्टेंट्स एंड आर्किटेक्ट्स। आपकी बात सुनते हैं वो? नहीं, एक ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं कर्व आगे आए थे नितिन कि अब सब एक अच्छा आर्किटेक्ट हमेशा फराज साहब की बात सुनेगा। मैं ये कहना चाहूंगा, वो खराब आर्किटेक्ट होगा जो नहीं सुनेगा। बल्कि कई जगह मेरा ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मैंने ये कहा सर मुझसे आर्किटेक्ट खराब नहीं है भाई साहब, दैट इज नॉट गोइंग टू से आर्किटेक्ट यहाँ बैठे हैं फ्रेटर्निटी को लेट्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट आई थिंक आई आल्सो से सॉरी फॉर भाई कि सब लोग अपने एरिया में एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। करेक्ट। और हमारे फर्स्ट एपिसोड में कुछ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आए तो ये बोला कि आप पैसे ज़्यादा नहीं खर्चोगे अगर आप एक्सपर्ट से बात सुन लोगे, बेशक आपके पैसे बच ही जाएंगे। करेक्ट। बट अगर उससे ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई एक्सपर्ट है तो उसकी बात सुन लीजिए, दे ऐड वैल्यू टू योर प्रोजेक्ट। एब्सोल्युटली यस। तो सुमित, थोड़ा आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आप कितने टाइप के क्लैडिंग मटेरियल बनाते हैं, और इन योर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्हाट डू यू रेकमेंड, व्हाट मटेरियल टू बी यूज्ड फॉर व्हाट एप्लीकेशन per se? So Like in your evolution process from ACP to wherever you are today, maybe you can explain. So when we started, Amit, frankly speaking, we started with product only for commercial building. So we were only offering metallic and solid finishes to the clients. But after few years, we realized commercial is not only the target market for us. Interior. So we have to start product for residential segment also. Right. So we eventually started with finishes which are now comes in wooden finishes, granite finishes, marble finishes. Very recently we have also tied up with a company called VM Zinc from France. With that collaboration we give zinc cladding now in the market, and that cladding looks awesome for residential segment. If you have a villa, Interiors. that is for exterior. As of now, whatever product we are manufacturing, For we are exterior. only manufacturing for exterior. So zinc is a very versatile and a very innovative product which architects really likes a lot. You like it? Yeah, absolutely. You're just saying it because he's saying it. नहीं, देखो, zinc for me is like leather. जैसे एक लेदर की फील होती है ना, आप मतलब अपने फर्नीचर में, उसमें लेदर जिस तरह से, जिस पैशन से आप यूज करना चाहते हो इंटीरियर में, वही आर्किटेक्ट के लिए जिंक, नेचुरल सैंडस्टोन, लाइम, ये सारी वो वैल्यू होल्ड करते हैं. It's quite fantastic. Zinc is available, for us to use in the. I want to take Ali's view on this. We've used the word sexy or seductive and so on. So how does that play a role in your way of thinking when you're doing interiors using different materials? So, I mean, interiors have a lot of options when we talk about materials, and glass is also such a versatile product, and of course metal along with that. That you can create multiple options with glass, with metal inserts in between glass, and of course, like you said, it ends up looking sexy. So, every customer, when we are designing a glass or an area for a customer,
we want to design it according to their personality, right? So I feel like it should reflect who they are, and it's an experience because every customer is unique, and we get to design something different for everyone. And once we see the end result, we feel victorious about it, and that's the whole beauty of doing glass in interiors. So Nitin, what's your take? You tell your clients this, you want to make the highest grosser building. I mean, you have to be commercial with your clients as well, right? हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आपने जो बात कही, एक टाइम पे 5 साल 6 साल पहले मैं इंडिया में 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, 4 डिफरेंट चीफ मिनिस्टर के साथ। सबका ब्रीफ एक ही था कि मुझे अपने कैपिटल सिटी के लिए एक आइकॉनिक बनाना है जो सारी दुनिया आगे देखे। दैट शुड, तो ये जो आपने कहा ना, उसको कोई कहता था सिग्नेचर बिल्डिंग, कोई कहता था कि आइकॉनिक, कोई कहता था एड्रेस, क्लास जी। और उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रखे थे और वो यही कहते थे कि बस ये है कि जो आए तो ये नया सिंबल बन जाए अभी सिटी का। कहाँ मिलना है? यहाँ मिलना है। हाँ, तो हमने मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट उनका कहना भी ये था कि भाई सिंगापुर के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ली क्वान, उन्होंने एक एजेंडा ये रखा था कि मुझे सिंगापुर में 100 स्काई स्क्रैपर्स बनाने हैं, 100 हाई राइज टावर्स बनाने हैं। जब वो बन जाएंगे तो सिंगापुर का नाम दुनिया में हो जाएगा। तो वो जो CBD बना उनका, हाँ, वो सारा उनका अप्रोच ही वो था। सिंगापुर तो भाई आज की डेट में भी वही कर रहा है। तो बिल्डिंग्स जो है ना, वो एक तरीके का पावर स्टेटमेंट भी है एक पॉलिटिशियंस के लिए। जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए बिल्डिंग्स उसका पहला एडवर्टाइजमेंट है कि आप अपनी बिल्डिंग दिखा के ऑलरेडी सेल्फ एडवर्टाइज कर देते हो अपने आप को। तो उस रीज़न से जो उस बिल्डिंग का लेट अस से साइज और शेप और फॉर्म तो ऑब्वियसली एक रोल प्ले करता है, बट उसके ऊपर जो फसाड है, ठीक है, वो उसको एनहांस करता है, ज़्यादा आई वुड से सुपर एनहांस करता है। तो अट्रैक्टिवनेस होना ज़रूरी है, और उसके लिए उसके मटेरियल की चॉइसेस तो वही है, ग्लास, कंपोजिट, जिंक, metal cladding, brick. I want to add here. Sorry, I want to enter that there is this very nice complex which is coming Saket. It's Eldico Center. If you've been to Eldico Center, Eldico Center, you sometimes, I've been there a few times, you sometimes believe you are not in Delhi. The way that it's aesthetically done, I don't think there's much of glass or ACP used there at all. I think it's got more of brick cladding or whatever. But it looks phenomenal and it gives you that really nice, rich feeling. And the bestest of restaurants have come up there. It's not funny. You've seen the center. Right. So what do you think about the architecture of that building, of that complex? मैं इसको थोड़ा और डिफरेंट तरीके से लें तो आप 32nd माइलस्टोन कहिए या साइबर सिटी कहिए या एल्डिको सेंटर चाहिए, तो वो ना एक तरीके से एक स्टेज सेटिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको एक किसी ऑरा में ले जाते हैं, एक टाइम पे ले जाते हैं। जैसे कि एक थीम मूवी होती है, तो दे आर कॉल्ड लाइक थीम, उनको थीम पार्क नहीं बोलेंगे, थीम्ड आर्किटेक्चर बोलेंगे। थीम्ड आर्किटेक्चर है जो कि आपको डिफाइन करता है कि आप एक सेटिंग में हैं तो इसलिए ब्रिक यूज़ करते हैं, स्टोन यूज़ करते हैं, तो वो मटेरियल आपको ना उस रीजन में एक्सप्रेस करने लग जाता है। तो वहाँ पे ये है कि हमें डिज़ाइनर को डेलिबरेटली उस पीरियड के मटेरियल यूज़ करने पड़ते हैं, वो स्टाइल यूज़ करना पड़ता है, वो एक्सप्रेशन वापस ना आए। अदरवाइज लार्जली, बट मैं इधर एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंटली आपको बोलूँगा, देखिए ये जो थीम चीज़ें होती हैं ये सारी छोटी बिल्डिंग्स में होती है। आप थीम चीज़ें हाई राइज में नहीं कर सकते। करेक्ट। कि वहाँ पे सेफ्टी है, वहाँ पे स्पीड चाहिए, तो वहाँ पे आपके मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स ही आपको यूज़ करने पड़ते हैं। और ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्लाइंट एजुकेशन का भी, कि आपको उनको भी काफ़ी हमें समझाना पड़ता है कि आपको क्यों हाई राइज में ग्लास यूज़ करना है, आपको क्यों ऐसा। बड़ा मैंने देखा है कि लोग मेरे पास आते हैं कि आप यार हमारे लिए ग्रीक आर्किटेक्चर बना दो, ठीक है, उस तरीके का कॉर्निसेस और वो डेकोरेटिव काम कर दो। उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये उस टाइम के लिए था, छोटी छोटी बिल्डिंग्स के लिए था। अब आप बोल रहे हो कि हमें 50 स्टोरी 70 स्टोरी की बिल्डिंग बनानी है, इसमें हम थोड़ी वो उस तरह से करेंगे, तो हमें एक सिस्टम के साथ काम कर। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्लाइंट को उसको नेविगेट करना कि उसको ये सही नहीं है, वो भी डिफिकल्ट जॉब हो जाता है कई बार। पर चलिए वो वही प्रोफेशन है, उसी के खाते हैं हम। भरत भाई, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे फ्रॉम द अर्ली डेज ऑफ गुड़गांव, कनॉट प्लेस एंड अदर प्रोजेक्ट्स दैट यू डिड, कि
आज के ज़माने में क्लाइंट्स सुन रहे हैं, दुनिया भर घूम रहे हैं, ज़्यादा घूम रहे हैं, वी आर ट्रैवलिंग मच मोर देन वी एवर डिड इन आवर लाइव्स, तो बाहर जाके चीज़ें देख के इम्प्रेस तो बंदा हो ही जाता है। नहीं देखिए, जिस तरह से आर्किटेक्चर पहले था, हमने कई जगह जैसे लोधी रोड पे उस टाइम पे वर्ल्ड तो टाइनाबाद हो गया ना। कुछ सारा था, तो उसमें और आज में बहुत फ़र्क है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि पहले द लाइफ वॉज मच सिंपलर, नाउ इट्स वेरी, मतलब पीपल हैव नॉलेज अबाउट इट, उनका एक्सपोजर हो गया है। और वो जो बात है कि मेरा जो है यूनिक होना चाहिए, वो यूनिकनेस लाने के लिए जो आपने एड्रेस की बात कही, वो बहुत आज इम्पोर्टेंट प्ले कर रहा है रोल जो है। कहीं ना कहीं हम गोल्फ कोर्स रोड देखते हैं, अंडर पासिस के साथ जो उसके साइड के जो जितने भी रेजिडेंशियल हैं, कमर्शियल हैं, उनकी अपग्रेडेशन हुई। और वो जो अपग्रेडेशन हुई, वो कहीं ना कहीं उसमें फसाड बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, क्योंकि जिस टाइम पे आदमी के जहन के अंदर वो फसाड या बिल्डिंग का आ जाता है, जो आज आप दुबई का देखें, सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं, वी टॉक अबाउट बुर्ज खलीफा, तो आज कौन बुर्ज खलीफा में रहना नहीं चाहता। तो आज कोई भी अगर अपना एडवर्टाइज भी करता है, डेवलपर भी करता है, वो कहता है इट विल बी लाइक बुर्ज खलीफा। तो कहीं ना कहीं वो एड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इसमें एक फन फैक्ट जोड़ता हूँ, मुझे नंबर का एग्जैक्टली पता नहीं है, बट जितना कॉस्ट बुर्ज खलीफा को बनने में लगा था इन द लास्ट 10-15 ईयर्स, दे हैव रिकवर्ड द कॉस्ट बाय जस्ट डूइंग एडवर्टाइजिंग ऑन द बिल्डिंग। सो जो उनका बाहर जब भी कोई इवेंट होता है, रिपब्लिक डे होता है, नेशनल डे होता है, वो वहाँ डाल देते हैं, एंड दे चार्ज मिलियंस ऑफ डॉलर। सारी दुनिया के इवेंट्स डाल दो। That in itself is a statement. Not only that, but it's a money spinner. And facade lighting has also become a very, very important. It's come up in India in many buildings. I haven't seen that too much, but coming to a point where return on investment, maybe Nitin take the cue from the question, how do you choose materials, return on investment, let's say glass versus cladding, ACP versus zinc versus others, कि इनका return of investment क्या है? What's the longest durability you can get with which material? राइट, सो देखिए, एक मैं आपको जो बार बार हम रिसर्च करते हैं और जो एक्सपीरियंस शो कर रहा है, वो ये है कि हम जनरली मैं जो डिस्कशन से गैदर कर रहा हूँ, हमारे जहन में ना वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दीज लार्ज स्केल, राइट, हाई राइज बिल्डिंग। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर हम, तो ग्लास हैज़ परफॉर्म्ड वेरी वेल। ग्लास के साथ में हमेशा क्लाइंट के दिमाग में एक बात होती है, क्लीनिंग, सफाई, और सम रीज़न दिस इज़ व्हाट इज़ देयर इनहेरेंटली। तो आई वुड से जो हमारी ग्लास क्लीनिंग इंडस्ट्री है, उसने इवॉल्व करा है, बट आई कैन फर्दर इवॉल्व, उसमें अभी भी स्कोप है उसको evolve। पर फिर भी मैं कहूँगा लार्जली इवॉल्व कर लिया है कि अब हम क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं कि आपकी बिल्डिंग हो जाएगी सिस्टमैटिकली साफ। तो अगर ग्लास को आप साफ करते रहते हैं रेगुलरली, और जो उसके साथ में सॉलिड मेटल लगा है उसको भी साफ करके बैठते हैं, उसको भी सफाई की जरूरत है। ये चीज अनदर चीज मैं जैसे आपको नहाने की जरूरत है, कपड़े बदलने की जरूरत है, वैसे बिल्डिंग को साफ रखने की आपके साथ मुझे ध्यान है, सबसे पहला जो डिस्कशन सिलिकॉन को लेके हुआ था, वो यही था कि शुरू में जो ऑयल बेस्ड सिलिकॉन थे वो लीक करते थे, आपको याद, उसके बाद भी वो उससे ही स्टेनिंग होती थी। तो आपको सफाई की बहुत जरूरत है नॉन स्टिक। लेकिन एक बार जब आपने उसको क्लीन करते रहते हैं, तो आपके जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल्स होते हैं, इनमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ट आती है। नेचुरल मटेरियल्स बहुत अच्छे लगते हैं, आर्किटेक्ट के बहुत क्लोज होते हैं दिल के, लेकिन दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। उनके साथ में फिर आपको बुटीक मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो उसके बाद मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो आपने जो पॉइंट रेज करा था कि आपको आपके आज की डेट में, तो अगर आपने सेंसिटिवली ग्लास और आपके क्लैडिंग ठीक से सेलेक्ट नहीं करी, तो आप उसको कमर्शियल बिल्डिंग में तो आपको कंपटीशन को ही लूज कर जाओगे आप। तो आपके वो लोग रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है कि अगर आपने ठीक से अपनी वो उसकी थर्मल जो वो है परफॉर्मेंस ऑफ द बिल्डिंग आपने करेक्टली नहीं आपने परफॉर्म करा, आपका अंदर हैप्पी एम्प्लॉय नहीं बैठा बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन, बिल्कुल, तो वो बोलेगा भाई मैंने ना जाना इस बिल्डिंग में, आप कहीं और ले लो। और बीच में इतनी पार्टीज इन्वॉल्व है। ठीक कह रहे हो। देखिए, आप पहली बात एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, उससे सही ज्यादा आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, करेक्ट, तो सीधा इम्पैक्ट आता है उसमें। किसी अब हर एक को पता है, ये कॉमन नॉलेज है
कि अगर आपने ठीक से बिल्डिंग का ग्लास पोजिशनिंग और स्पेसिफिकेशन नहीं करी, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ऊपर जाना ही जाना है, एनर्जी कॉस्ट ऊपर जानी ही जानी है, और फाइनली वो इतनी अनबेरेबल हो जाएगी कि आप उसको द मोमेंट आपको एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा, आप निकल के वहाँ चले जाओ. Hence, the right specification of glass plays a vital role. Very important. Very, very important. Sir, from a layman's point of view, if you think about it now, when you imagine a modern city, you mentioned Dubai, you mentioned Singapore, you can only imagine skyscrapers and more metal and more glass. So there's no doubt in terms of potential of the product. Even for architects, now that they're shaping, buildings and giving it, more forms, and the product also has the adaptability. There are metal installations being used in the facade of the buildings, and even glass for that matter. It's giving you the functional properties and even aesthetics. There's digital printed glass. You can paint your building in any way you want. And like Sumitji mentioned about having different finishes in metal. So, it covers both the aspects. बट व्हाट इज द फ्यूचर फॉर मटेरियल्स सुमित? क्या नए आपके 5 प्रोजेक्ट आने वाले हैं? 2 तो बता दो. So, Amit, firstly, let's discuss the return on investment, what we just Sure, please. asked from Nitin ji. So, since innovation is happening every day in the world, so in building material also. So, if we talk about, let's say, 2 component on the facade, one is glass, which Farad ji and Ali already spoke about, and Nitin ji already mentioned a lot of things in the glass product segment. In cladding, now there is a new product which has already evolved and which has already been introduced into India in cladding, which is called honeycomb panels. So these honeycomb Can you panels. just explain for audience what is a honeycomb panel? So honeycomb panels are the panels which are made up of total 100% of aluminium, and in the core you have a aluminium honeycomb structure core inside instead of plastic or mineral core. So this the versatile product. The feature of this product is that it becomes very lightweight, and the thermal and acoustic properties of this is far superior than your ACP And panels. it's more expensive? It's bit expensive, but as we were talking about return on investment, so the money which you pay today, maybe after 10 or 15 years, since it's purely 100% aluminium, so the kind of scrap value what you could expect from this product would be the same what you would pay today. Also, I think it's important for any developer to understand that whatever you invest today on your building will only give you one thing: return on investment long term. Yes. If you divide it over a 50-year period, then a 10-year period, then building will continue to remain rented, and there are still a lot of buildings which are continually we want to go to One Horizon Center to rent. So maybe you're getting bored a little bit talking about buildings and aesthetics and some of this is the reality of life. And today I would like to introduce the special Makhi who has joined us today. And Nitin has wanted a new drone technology, micros checking on whatever we are. Here it is. So this is the special WFM. Taking all the close-ups. Yeah, who's actually doing a part of intelligence. So we were talking about AeroCity Delhi. There will be AeroCity Zevar. There will be AeroCity in the new Navi Mumbai airport. There will be many other AeroCities. Bangalore. You've just heard that there is a new mini cyber hub coming up near the Dholapur metro station to attract more Delhiites to go there rather than going to Gurgaon. And then coming back to the same point, these are becoming addresses. And for your addresses to be becoming addresses, the cladding and the way the building looks, the lighting and the materials, this is becoming very, 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 very important. Right? Right, absolutely. So what I want to talk about is something very sensitive to everybody in the industry. Okay, we have all heard that there have been fires caused by the facade of a building. Delhi, Bombay, Dubai, wherever in the world. So the material outside of the building is very, very important. So as to making sure that I'm inside the building, I want to make sure that it's safe. If something happens, then I don't want to be saying, okay, tie, I'm done. Because somebody else made the mistake of not being able to Use the right product. Yeah, use the right product. And that's, end of the day, it's all about everybody wants to be happy, healthy, live longer, Right. and be safe. Whether it's your car, whatever.
what has changed, Nitin, in the architect's purview of fire safety, which I think is an important subject? तो अमित थोड़ा मैं और पीछे जाऊंगा. फायर आई वुड से रीसेंट सेंसिटिविटी जनरेट हुई है आउट ऑफ अ इंसिडेंट दैट हैपेंड इन यूके. Yes. जहाँ एक रेसिडेंशियल टावर में अनफॉर्चुनेटली UK, Dubai. फायर से ही डेथ हो गई थी. Yes. एंड बट इसको भी पहले देखें तो मॉडर्न बिल्डिंग्स के अंदर शुरुआत में प्रॉब्लम हुई थी जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी कि खिड़कियाँ गिर जाती थी. जब हाई राइज बिल्डिंग बनी तो लोगों ने फिगर आउट करा विद अनफॉर्चुनेटली विद एक्सीडेंट्स राइट कि इतनी विंड होती है कि खिड़कियों की एंकरिंग. तो बड़े फेमस आर्किटेक्ट्स हैं वो जो आपके लूर पेरिस में जो है वो IM पे उनकी वो बदनाम हो गए थे. उनकी बिल्डिंग की खिड़कियाँ गिर जाती थी फंडामेंटली. They were not designed properly. नॉट इंजीनियर्ड प्रॉपरली लेट मी से. Probably. तो ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है. जब आप बिल्डिंग इतनी बड़ी खड़ी करते हो, एक सिंगल स्टोरी के मकान में कुछ गिर भी गया तो किसी को हर्ट नहीं करता. बट आप जब हाई राइज खड़ी करते हो तो वो सारी सिटी के लिए लाइबिलिटी, पूरी कम्युनिटी के लिए लाइबिलिटी बनती है साथ. तो वही सेंसिटिविटी आती है फायर को लेके कि आपको जो भी फसाड यूज़ करना है वो आपको ध्यान में रखना है कि वो फायर रिटार्डेंट हो. देखिए फायर प्रूफ नाम Can you explain fire retardant a little bit better on a हाँ श्योर. तो फायर रिटार्डेंट जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि अगर आग लग जाती है, देखिए आग लगना एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है जिसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उस आग को और बढ़ाने नहीं देना. Correct. Yes. तो फायर रिटार्डेंट जो हमारी स्पेसिफिकेशन है वो इंश्योर करती है कि आग आगे ना बढ़े. दैट इज़ अ बेसिक स्पेसिफिकेशन जो हर मटेरियल को दी जाती है. तो इसमें फायर रिटार्डेंट होना बहुत ज़रूरी है कि उसको आग को और बढ़ावा ना मिले. It should not propagate fire. Propagate fire. It should not be combustible. Are you making materials which are now mostly fire? Yeah. Because now I think that's the need of the hour. But is that a standard in the BIS as well? Not yet. National Building Code? Not yet, but yes, in cladding per se, it is now in ACP. It is now coming in, and I think it should get implemented very fast. But Very does that, of course, that would increase the cost from basic ACP to fire rating ACP. for sure. But then it's also safety. Safety always comes at a cost. And you have to ensure, and he as a manufacturer has to ensure that if somebody says, no, I don't care, you give me whatever you can, I don't think. And I would tell all the suppliers and manufacturers to be conscious, yaar, the way you are conscious about your health, and fire is you're putting thousands of people inside a building. Yeah. So Amit, I would say that whenever any client chooses any material for their facade, Right. they should not just think of the aesthetic value. They should also see the functionality of the product. Absolutely. And what you rightly pointed out, that safety comes first. It is not, your building should not just look beautiful, but functionally it has to perform. So when we are talking about thermal insulation, when we are talking about sound insulation, when we are talking about fire safety, when we are talking about sustainability, so these all elements are also very important, just not the aesthetic alone. It's not just talk. We're not just talking for the purpose of talking. These are real pointers. Correct. And when you design a building, these are basic checklists. Safety, fire safety, sustainable materials, and also to make sure that the building can give a long return on investment for the person who's investing Right. in the building. What has changed with the government of India giving you building to design, Nitin? You are designing so many projects for, I know, IIMs and IITs. Yeah, no, you are absolutely right. The number of IITs, IIMs, AIMS that are happening now under the Modi government What's the number? are phenomenally high. We have, RCOP has done like 5 AIMS in the last 5 years, you know, and then the Delhi AIMS is the mother of all, the new The new AIMS one. setup. And how many more aims coming up? And there would be at least 5 more in the pipeline. And IIT? Right. IITs, we have done 4 new, and overall, if you say around 10 have been made, you know, which is again fantastic. IIMs again, same route fundamentally. I'll tell you one more fun fact I learned a few days ago from JLL. As of today, there are 80 large operational airports in India, and they have come up 50 in the last 10 years. And there are another 60 new airports coming up in the next 5 years. Right. Each big, large, and the commercial traffic and the traffic of passengers is all growing.
all flights are going full, Oh, prices are going, okay, whatever. There is scope for new airlines. So there's growth from an India growth story point of view. And whatever is happening with this China, US trade war, blah, 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 the biggest benefactor will be India. For So sure. being a manufacturer, I think Sumit did a great job to take a decision to do manufacturing. I do that as well. Sorry, I shouldn't touch this. My camera touches. So yes, we all should do that as well and continue to be able to bring more make in India. And I think we should also become net exporters. You're doing projects So- abroad, Nitin? yeah, we're doing projects in Middle East, North Africa, Central Asia. So during the course of this show today, in the last couple of hours, we've discussed that we have a drone Makhi. It was a WFM product came out thanks to Nitin. We've discovered that Ali goes mostly to Cyber Up. Used to go to date to Cyber Up. What was your favorite dating destination and why? I cannot disclose. Come on, yaar, now you're married and My wife is watching. He wants to stay married. That's okay. That's okay. But still, you know, for the purpose of what attracted you in a place for dating, or some friends of yours which are still probably there. So I think Nitinji mentioned about themed architecture and having retail galleries now which are taking over the malls. I think that kind of a setting, you know, is much better than a mall. It sets the vibe. The vibe. The vibe is what a building, an area, a complex, and a material can give. We haven't finished the subject of fire safety. I want to add this aspect and you can tell me what you guys think. I think that just the facade material in the building is not going to make it fire safe. Every material used in the building has to be Correct. safe Yes. from a certain point of view. Yeah. As to making sure that Compatibility should be. I wanted to add something here which I learned today and it's starting to make sense. So we do 60 minutes fire rated glass and 120 minutes fire rated glass, and rightly said that fire cannot be stopped but it can be prevented from spreading. So that 60 minutes or 120 minutes is actually preventing it to spread across the Containing building. it. Yeah, Containing it. and Containment. during that time the rescue can take place. correct. Simultaneously, I'm sure for other products also, you know, there are these timings which prevent the fire from spreading, and you know that whole rescue operation can take place. But I think what is important is what Ali is saying, and we're talking about that as a developer, as an architect, and as a fraternity member. It's very important that we said in our first episode that the supplier of the material, the manufacturer, is the first point of responsibility to make sure कि वो गंद ना बेचे. अगर वो गंद बनाएगा तो लोग गंद खरीदेंगे because everybody gets attracted के सस्ता है चलो पैसे बच जाएंगे. What I'm trying to say is the product that you produce has to be presented to the right person. Correct. Some products are meant to be presented to developers. Some have to be presented to architects. Some have to be presented to, because everybody looks at that product from that point of view. And ये बड़ा टाइम लग गया भाई साहब सीखने में कि किस इंसान को क्या प्रोडक्ट में. मैं ना मुझे एक स्टोरी ध्यान आ रही है बिफोर आई फॉरगेट इट, मैं सुना देता हूँ और वो शायद आप सबकी दिल की बात आर्गुमेंट को लेके बाहर निकालेगा और आपको कुछ ट्रिक भी हमारी मिल क्लास निकल जाएगी. आपको चलो. आपको कुछ ट्रिक भी मिल जाएगी. तो एक मेरे जो सबसे पहले जब मैंने प्रोफेशन में आया तो गुरु हैं, अब नहीं है वो, जोसेफ एलेनस्टाइन, दिल्ली में उन्होंने बहुत फेमस बनाई है. God bless you, sir. उनके बारे में एक बड़ा किस्सा मशहूर है. इतने फिनिकी थे वो, इतने फिनिकी, मतलब वो मैन्युफैक्चरर्स और जो कॉन्ट्रैक्टिंग टीम है दुखी करके रखते थे. तो एक किस्सा ये फेमस है कि वो एक सैम्पलिंग कर रहे थे, तो सैम्पलिंग लेके जाते हैं कि जी 3 सैंपल रखे हैं, मैं अप्रूव कर दीजिए आप. तो वो कहते हैं अच्छा ऐसा करो, इन 2 के बीच का बना के लाओ मेरे. ठीक है, वो तीसरा तो रिजेक्ट है, इन 2 के बीच का बना के लाओ. तो कहते ठीक है. उसके बाद फिर 2-3 ले आए, उनके बीच का बना के, और वो कहते हैं ये तीनों ही बकवास है, वापस ले जाओ, दोबारा बना के लाओ, दोबारा बना के ले आए. फिर कहते हैं अच्छा एक काम करो, जो ये वाला थर्ड वाला है ना, इसको थोड़ा सा 20% हल्का करके ले आओ, और 20% हल्का करके ले आए. ऐसे करते करते 10वीं बार जब आई, ठीक है, तो 10वीं बार वो फिर कुछ उन्होंने बोला, वो मैन्युफैक्चरर ने सुन लिया. कहता है सर अब मैं बोलूँ? कहते हैं हाँ बोलो. कहते हैं सर ये तीनों एक ही है. ले आओ तो वो परसेप्शन. फाइनली आर्किटेक्ट को कंट्रोल करने का वो उस मैन्युफैक्चरर ने तरीका निकाला. तो ये है प्रॉब्लम आर्किटेक्ट की कि वो अपने फिनिकी मोड से बाहर नहीं निकल. I also feel architects love testing the supplier's capability. वो वही ढूंढते हैं जो आपके पास नहीं है. It's easier because for them it's easier said than done, but I feel it's a blessing in disguise because in that process of developing,
the supplier learns a lot. Fair point. Yeah. So, you know, hats off to the और architect. अमित एक चीज़ और है ना, एज अ मैन्युफैक्चरर आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन्युफैक्चरर टू एजुकेट द आर्किटेक्ट्स और द कंसल्टेंट्स अबाउट न्यू इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स, बिकॉज एट टाइम्स इट्स नॉट every time that architects knows each and every innovation which is coming in the industry. Yeah. So as a manufacturer, firstly, it's your responsibility to bring new innovation in the industry. और जब आप लेके आ रहे हो तो उससे जितने रिलेटेड जितने भी कस्टोडियंस हैं उनको साथ में एजुकेट करना और उनको सिखाना और बताना, आई थिंक दैट्स वेरी But I think एक चीज और है, as a person from a background of I don't know how many aspects, for me, podcasting is a new career for me, so I'm really loving it and thank you guys for bearing with me. But I think supplier की ये भी responsibility बनती है to tell the client, architect, consultant कि ये नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि वो बोल देता है कि हाँ जी मैं कर दूंगा, तो आपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन बार बढ़ा दी। आप खुद ही मना कर दो फरद भाई, आपने तो पता नहीं कितने हजारों आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स से डील किया होगा। वही मैंने कहा, स्टार्ट सेइंग नो, स्टार्ट सेइंग नो, इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एक ये हो कि आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट की जिम्मेदारी है, नो, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर कोई आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट कोई आपसे कहता है कि इसको करके दो, उसने कहा नहीं सर दिस इज नॉट राइट, ये कहना सीखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मनी इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पर इसके ऊपर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जैसे होता ना, धूल मेरे चेहरे पे थी, मैं आईना साफ करता गया, मतलब प्रॉब्लम मेरे में थी और मैं दूसरों पे ब्लेम डालता गया। तो ये एक ह्यूमन सेफ्टी, जब हम फायर की बात करते हैं, एनर्जी सेविंग की बात करते हैं, नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं, उसमें जिम्मेदारी हमारी है, वो किसी एक पर्टिकुलर की नहीं है। या तो आपने कहा जैसे एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम में मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहूँगा कि अवेयरनेस एंड एजुकेशन। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, मैंने ऐसा करके देखा है, आई रिफ्यूज सम ऑफ दी प्रोजेक्ट बिकॉज which is the right thing to do. सही नहीं थी। उसके बाद उनको रियलाइज हुआ, कुछ टाइम के बाद उन्होंने मुझे फिर दोबारा कॉल किया, और आज उनकी कई मीटिंग्स में, जहाँ पे नेगोशिएशन मीटिंग्स होती हैं या कुछ होती है, मे बी आई एम नॉट डूइंग दैट वर्क, बट डेवलपर या कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट चाहता है कि इनको बुलाओ, इनके तजुर्बे से सीखो। मैं इस पर एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक दूसरे के तजुर्बे से सीखते हैं, वो फ्री का होता है, पैसे नहीं लगते, वो ये ज़्यादा कॉमन है। ये सेहत भी बचाता है आपकी और सुकून भी होता है। मगर एक होता है मैं खुद तजुर्बा करूंगा, उसमें पैसा भी जाता है, सेहत भी जाती है, रिस्क भी होता है, जाती है, रिस्क भी होता है। इज्जत भी जाती है। ये लाइन मुझे ये रोज मारते हैं कि तू खुद तजुर्बा बहुत अच्छी कर बात है, ले, बहुत मेरे अच्छी बात है। तजुर्बे से सीख ले। यू नो, समटाइम्स बीइंग ओवर एम्बिशियस आर्किटेक्ट हमें बोलता है ये बना देगा, वो सिर्फ बना देंगे, ये भी बना देंगे, एंड देन यू नो समटाइम्स यू ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर, एंड यू नो, फिर वो एक टिपिकल सेल्स माइंडसेट हो गया ना। हाँ, नहीं वो आप बिल्कुल फिर हम ठीक वापस कह रहे हो। पापा जी के पास जाते हैं, तो फिर वो यही लाइन हमें मारते हैं। तो हमारे सबसे अच्छे रिलेशन जो इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट जिनको हम लोग करते हैं, और वो हमारे ऑलमोस्ट एडवाइजर्स बन जाते हैं। बिल्कुल फरद भाई ने ठीक कहा, वो हैं जो आके नहीं कहते हैं कि ये गलत कर रहे हो आप, जो मुंह पे बोल पाते हैं, वही सबसे अच्छे एडवाइज़र होते हैं। तो वो एक बिल्कुल ठीक बात है। एक इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे को ट्विस्ट ध्यान में आ रहा है, वो एक हम छोटा सा ओपीडी क्लिनिक बना रहे थे, मेरे ख्याल से आपका वहाँ लगा हुआ है ACP, जो कि बिल्कुल गरीब जनता वहाँ पे आनी थी, और वो एम्स वाला? नहीं एम्स वाला नहीं था, एक वो दिल्ली के अंदर ही है, कोविड हॉस्पिटल्स जो कोविड तो उसमें एक दिमाग में आइडिया आया कि भाई सब गरीब आ रहे हैं यहाँ पे, अब इनको कैसे आप अच्छा फील करा सकते हो। तो ये है कि भाई एक रिच मैन का मटेरियल लगाओ, ठीक है, कि उनको लगे कि अच्छा, तो वो इनका एक अच्छा वुड लाइक लकड़ी जैसा ACP है। तो हमने कहा लगाना तो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल ही है, तो हमने फिर वो वुड वाला ACP सेलेक्ट करा कि भाई जो गरीब आदमी आ रहा है वो लगे यार ये तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था, लग्जरी प्रोडक्ट है मेरे लिए, ठीक है। और उसके साथ द मोस्ट ब्यूटीफुल टिंटेड ग्लास दैट वन कुड गेट, वो यूज करा। So, I'm trying to close and I want to ask this one question. So, Nitin, what's the next mega city of India? What is the next, what tier 2 cities, what's coming up in India? Well, let people know where's the next future and what's driving it. जी जी जी। तो देखिए एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना अभी चल रहा है कि टेक्नोलॉजी ने ही ड्राइव करना है हम सबको, Right. और बिजनेस को टेक्नोलॉजी के पास इतनी पावर है कि दी वैल्यू दैट इट कैन क्रिएट, राइट,
गुड़गांव बना है, नोएडा बना है, बैंगलोर बना है, हैदराबाद बना है, टेक्नोलॉजी से ही बना फंडामेंटली। तो टेक्नोलॉजी ने अब स्पेशली कोविड के बाद ना एक अलग तरीके का रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया है, मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी। और दूसरी चीज़ है एजुकेशन। एजुकेशन जहाँ जहाँ है टेक्नोलॉजी वाली, वहाँ वहाँ अभी ग्रोथ ड्राइव होने वाली है। अब ये बता दीजिए कौन सी सिटी में सर लोग भागना शुरू कर देंगे वहाँ पहले? तो देखिए इंदौर, मैं कहूँगा नासिक, राइट, इंदौर, नासिक, आपकी भोपाल, राइट। सुनिए भाई साहब, इंदौर, नासिक, भोपाल रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ने वाली, खरीद लो, अभी से ही खरीद लो। ऑलरेडी बढ़ रहा है, ऑलरेडी बढ़ रहा है। खरीदो खरीदो। तो आपके मतलब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, वो सिटी आपकी मेगा सिटी के क्लोज होना चाहिए, उस सिटी में एयरपोर्ट होना चाहिए, उस सिटी में अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए, वो मैग्नेट बनने वाले। क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब जो बच्चे एजुकेट होके आ रहे हैं, वो एक पैटर्न आप देखोगे, वो फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। अब वो चार्म खत्म हो रहा है कि वो ठीक है यूएस का चार्म है, बट इंडिया के अंदर एक पोल्यूटेड सिटी में रहने का रीज़न से या और प्रॉब्लम से सब जो हमारी नई जनरेशन है जिसको जेनजी कहते हैं, वो लौट के फैमिली में वापस आ रहे हैं, अपने घर पे रहना चाहते हैं। तो जो एजुकेशन जाके उनको मिल रही है टियर 2 टियर 3 सिटी में, उसी एजुकेशन को लेके, और आज की डेट में आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और आपको वाईफाई चाहिए, ये दो नेसेसिटी नीड्स हैं। इसके बाद आप कहीं भी सर्वाइव कर रहे हो उसके बाद में। तो नेक्स्ट मेगा सिटीज टियर 2 देन टियर 3, और एक जो शायद पूरा रेवोल्यूशनरी शिफ्ट आ सकता है वो ये है कि पीपल मे स्टार्ट लुकिंग फॉर सीनिक प्लेसेस। Let's hope that we make the building industry in India not only to be used in India but to be supplied the world over, and it's the best time for India. All we need to do is to just focus on quality. I think it's a big word to say, but it's an important word. Yep. With that, thank you very much. Thank you, Nitin. Thank you. Thank you, Vindra. Thank you. Fantastic. Thank you.